Today, welcome to Profit with Purpose. We are excited to have Nivesh Raj, the founder of the Leadership 30 and the co-founder of Setup for Healthy India, with us. So, Mr. Nivesh is a visionary leader and is driving innovation across Mhm. sectors like healthcare, leadership, and youth development. Your journey of leading sustainable change, creating new business lines, and making a real impact is truly inspiring for many of us. Today, we will look forward to learning from your experiences of how social entrepreneurship can fuel both business growth and social Mhm. change. So, Okay. should we begin with the question, sir? Haji, please. So, first question, sir, is what inspired you to establish the Leadership 30 and Healthy India? Moreover, what, according to you, is the most important, is the most importance of the impacts in social entrepreneurship? Okay. So I have to go back in time. So it was 2010. You people heard about a movie known as Super 30? Do you know about Yes, Super 30? Okay. yes. So I was a student of Mr. Anand Kumar Ji. Okay. So when you study there, you will understand problems at a very young age. You can understand that education, achieving the glory of education needs money. But Anand Kumar ji is like a god. Okay, for me, he's like a god. So there you got the butterfly effects. So when I was sitting inside the class, the idea was like, what can I do for anyone? For anyone, okay, it can be a class of people coming from lower economy side or maybe higher economy, but I have to do impact. That was in my mind at that time. It took several years to understand that what is the problem. So basically, Mr. Anand Kumar ji was like making you understand that you can crack IIT even if you come from a very you can be a rickshaw puller at the same time in class 10th and you can crack IIT, to give you an example. So just think like that. We are sitting in our homes, okay, everything is available and someone is doing rickshaw pulling and all at the same time preparing for JEE. But if you see abroad education needs a lot of money. That is the understanding of people in India. Anand Kumarji's vision was to take the lower class society to the IITs, and my vision was to take the lower class societies to the Ivies. So I just wanted to make sure that anyone from India, irrespective of the economical background, can study into an Ivy League or maybe the top 20 colleges across the world. So I created this program known as the Leadership 30, and there are a lot of stories about it. Secondly, why I created Step Up for Healthy India? The same reasoning. Okay, so uh, if you want to score good in your examinations, what is the very first point? Mental health, physical health, and then obviously you can study. So education and health are very relative. So that's why Step Up for Healthy India I started in 2016, and the Leadership 30 I started in 2018. Okay, so What was the that's second part of the question? so the second part of the question was what, according to you, is the importance of the impacts in social entrepreneurship? Oh. Now, when you see the impact model or the business model or whatever you want to call of Super 30, the Ramanujan School of Mathematics. So the model was like he used to charge a bare minimum fees from like a group of other students, and 30 students were given free education. But that cannot be sustainable in long run. If you want to create different Super 30s across India, you will fail at point because it's not sustainable. Impact is one point, but at the same point, generating money is also important. Definitely. Now, if you see the Leadership 30 model, the model is like if I am picking 25 students from lower economical society, I will make sure that I will pick 75 students from the higher economic society who can pay good amount of fees, who can pay me like 4 or 5 lakhs rupees to get into an Ivy League. And from that substantial amount, some amount is used for the Lower. employee, for profit, and then obviously it goes to the 25%. So the understanding with the Leadership 30 model is like it generates profit. And at the same time, it creates impact. Anand Kumarji's model was like brilliant, best, I will say, better than mine. But in impact, he was very good. In generating money, obviously, a lot of people on national media criticized him. I am not one of them. I'm just telling you that there is like a difference between creating impact. For example, let's say I am for
hypothetically in mathematics you can pick anything. So for example, I am Elon Musk. So if I'm earning 100 CR, I can invest 80 CR, correct? For impact. But if I'm earning 10 rupees, I can't give back 10 rupees. Definitely. I have to make myself sustainable. So right now, the idea with the leaders across India is like creating impact, but they are failing at some point to generate revenue. You should earn money. If money comes through a good way, it's better than everything because you can create a lot of things with money. So that's how I will answer it. That's great to know, sir. Anshika, I'll pass the next question to you. Okay, sir. Now we want to ask you that, sir, as we know that Set Up for Healthy India focuses on providing access to top-notch healthcare services in rural region Mhm. across India. So, sir, can you please Mhm. share with us some examples of some successful project or initiative that the Leadership 30 has undertaken? And through these initiatives, sir, how do you ensure that these are going to make a tangible impact on communities and businesses? ठीक है तो पहले तो ये समझो कि नॉन प्रॉफिट्स तो आज से स्टार्ट नहीं हुए लॉन्ग बैक ओके एंड प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं आया लॉट ऑफ इम्पैक्ट इज नो हो रहा है हर दिन एवरी डे इज बीइंग डन अब मैं स्टेप अप फॉर हेल्दी इंडिया एज योर क्वेश्चन सेड व्हाट प्रोजेक्ट्स वर डन सो और व्हेन वी स्टार्टेड वी डिड लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स बहुत सारा किया ठीक है बट आफ्टर 2 years 3 years आई अंडरस्टूड दैट आई कैनॉट चेंज द गेम कैन बी चेंज्ड ओनली इन वन केस by the youth. Create an army of youth who understands real problems, who have great education. So what I started to do is like started my students to tell them that you should do, for example, a course like Masters in Public Health, encouraging them to do that. So they went to Harvard, they went to the top colleges, and from there they have that bandwidth to create impact. One Nivesh cannot create a big change, but if 1,000 Nivesh come together, maybe after 10 years 15 years you will see a bright future in everything what I am right now. So Step Up for Healthy India is like what do you mean by Step Up for Healthy India? That means everyone needs to step up for a cause. If you are taking one cause, if you're making sure that a family, let's say a family for an example around you who have disadvantages because of economical barriers coming from the low economical background, if you support them, and just like you, 1,000 people start supporting everyone across their local areas, it the change will come after 5 years, 10 years, 15 years. But there is always a slow change, and it can create a great butterfly effect after 15 years. So Step Up for Healthy India first did a lot of health projects with a lot of organizations. I will not name them, but I understood after like 2 3 years when I started Leadership 30 in 2018, I understood that these things will not create change. I can create change only by making sure that whoever comes to my inner circle knows how to create change in their local areas. That is how Step Up for Healthy India is going on. Okay. All right, sir. Okay, great, sir. So the next question is, as you are a leader and social entrepreneur, so what are some challenges that you faced in the early stages of your journey, and how did you overcome them? Okay. So being a social entrepreneur is like for 5 years, it's like a curse. Okay. Obviously, you are doing great for the society. The fame is with people who are richer, who are not doing impact. And let me very blunt to you people. So I want to get the question again. Repeat it again. That's So, sir, one. basically, we want to ask, what are the challenges that you faced in the early stages of your journey, and how did you overcome them? So whatever I started with my students. So when you start something, you have only one passion. It's like create change, make India brighter. But when you start doing projects, what do you need? Money, correct? To do impact, you need money. So as any social entrepreneur who's starting, obviously बिलियनियर है तो उसकी बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन वो अगर सब्सटैंशियल कोई अच्छे बैकग्राउंड से आ रहा है पढ़ लिख के और उसको फिर करना है, तो उसके पास कुछ समय के बाद डिसएडवांटेजेस होंगे. सबसे पहला होगा मनी. जब मनी नहीं होगा तो आपके पास एम्प्लॉयज नहीं होंगे जिसको आप पे करो. जब एम्प्लॉय नहीं होंगे तो वो बात आज जो जिसको जहां तक पहुंचानी है, वो विजन, वो मिशन और वो जो कैरी करना है प्रोजेक्ट, वो सब ठप हो जाएगा.
तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, आप किसी भी सोशल एंटरप्रेन्योर की जर्नी देखो, आई थिंक कोई सोशल एंटरप्रेन्योर दिल्ली में 10 रुपए में खाना खिलाता है, ब्लड का कोई है, जस्ट नहीं नाम याद करा, किरण वर्मा, ओके। आप किरण वर्मा को देखो कितना फेस कर रहा है वो, और क्या जबरदस्त इंसान, ठीक है, ब्लड के लिए इतना कुछ कर रहा है, पूरा इंडिया में पैदल चल रहा है, वॉट एवर इज ट्राइंग टू डू वो कर रहा है। लेकिन आप देखो हर महीने उसको लास्ट में क्या होता है, बैलेंस शीट पे प्रॉब्लम क्या है, मनी का। तो वो हम एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर एक थॉट आ जाता है ना, इम्पैक्ट करना है, इम्पैक्ट करना है, बट आपको समझना होगा पैसा बनाना, मनी बनाना बहुत जरूरी है। तो स्टेप अप फॉर हेल्दी इंडिया से मैं पैसा नहीं जनरेट कर पा रहा था, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डोनर्स बहुत कम होते हैं, हम स्टार्टिंग में खुद से कर लेते हैं, थोड़ा पैसा होता है तो कर लेते हैं। लेकिन 2-3 साल के बाद अगर आप उसको रेगुलेट करना चाहते हो तो आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई सा भी प्रोडक्ट हो सकता है, आप वहां से पैसा जनरेट करो और फिर बोलो। आप सिर्फ अगर डोनेशन पे फोकस करने लगे हैं कि सिर्फ डोनेशन आ रहा है और एंटरप्रेन्योर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप चल जाए, मॉडल फेल कर जाए, इट हैज टू फेल। तो स्टेप अप फॉर हेल्दी इंडिया में वही हुआ, पहले मॉडल फेल कर रहा था, स्टार्टिंग 2-3 साल के बाद बहुत दिक्कतें हो रही थी, तो एक लॉन्ग टर्म विजन यही था कि अब मैं कैसे पैसा बनाऊं। तो आई स्टार्टेड मेकिंग मनी, एंड पैसा बनाने के तो बहुत तरीके होते हैं, बट आई मेड इट थ्रू एजुकेशन, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. So, Anshika, can I take over? Yes. So, one question, sir, is that what do you consider, in your opinion, is the most important skills or qualities that might have helped you or the aspiring leaders that are there who are upcoming in the social entrepreneurship area, wants to make a change, basically? What are those skills that are important and qualities that they need to have in themselves or need to instill in themselves in order to make a change in this area? देखो स्किल पे तो बहुत सारे स्किल्स रिक्वायर्ड हो जाएंगे, उस पर तो मैं चाहता ही नहीं। आई कैन टॉक अबाउट लीडरशिप। तो सर्वेंट लीडरशिप होना सबसे पहले जरूरी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लाइक सर्वेंट लीडरशिप। सर्व एज व्हाट, एज अ सर्वेंट, एट द सेम टाइम बी अ लीडर। वो स्किल आपके पास है। अगर आप लो बैकग्राउंड स्लम्स में जाके मोटिवेट कर सकते हो कि आप अपने हेल्थ पे ध्यान दो, एजुकेशन पे ध्यान दो, और वहां से अगर वो बैकग्राउंड वाले लोग सोचने लगे कि हाँ हो रहा है, फिर ठीक है, वो स्किल सही है। दैट इज प्योर सर्वेंट लीडरशिप। बाकी बहुत सारा स्किल है। आपको बहुत अच्छा बोलना आना चाहिए, आप काफी अच्छे मोटिवेटर होने चाहिए, आपके अंदर हाई एथिकल वैल्यूज होने चाहिए, हाई एथिक्स होना चाहिए, बहुत कुछ होता है। सो बिकॉज अगर आप ट्रम्प में जाओगे तो when you have like 10,000 people supporting you, there will be a politicians who will, अब चाहेगा स्टेक होल्डर गेम बनाना, ये वोट हो ये हो। तो सर्वेंट लीडरशिप कहती है कि फायदा पूरा होना चाहिए किसका, जो कि एक बैकग्राउंड है जिसको प्रॉब्लम है, एट द सेम टाइम उसका शोषण नहीं होना चाहिए, हिंदी में उसका कोई यूज, मतलब आप उसको गलत तरीके से यूज ना कर लो। तो सर्वेंट लीडरशिप वही है कि बहुत हाई एथिकल क्वालिटीज होने चाहिए लीडर के अंदर, और साथ में वो मास को समझा सके कि देयर इज अ प्रॉब्लम एंड यू हैव टू सॉल्व इट, ऑब्वियसली विल हेल्प इट। कूल, Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन। Definitely. So, sir, do you think that education in fostering sustainability and social entrepreneurship will play a great or plays a major role right now? Or do you think education does not have much contribution towards this aspect? Because seeing that in colleges also, this is not one aspect that can be taught. In my opinion, I believe social entrepreneurship, as you've also mentioned, there should be a servant, there should be want to serve people. So, do you think education would be able to instill that, or it is something that cannot be taught? देखो प्रॉब्लम क्या है, एजुकेशन सिस्टम होता है। अभी तुम जैसे SRCC में पढ़ रहे हो, या कोई हार्वर्ड में पढ़ लिया, कोई कहीं से भी पढ़ लिया ना, उसको आप नहीं सिखा सकते कि आप मतलब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कर लो या फिर कैसे कर सकते हो। तो एजुकेशन चेंज कर सकता है, इट कैन, मे बी, कुड बी, ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बट अगर आप मेरे से पूछोगे कि एजुकेशन चेंज कर सकता है एज अ लीडर, आई विल से 110%। बिकॉज मान लो मैंने 1000 बच्चों को पढ़ा दिया, ठीक है, उसमें से 10 भी चेंज कर गए बिकॉज ऑफ एजुकेशन, ह्यूज चेंज। बाकी लोग पे ध्यान नहीं देते ना, अदर सोसाइटी जो नहीं करना चाह रही है उसको क्या करना। लेकिन देखो एजुकेशन इज द ओनली वे टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स। अब 3 बातें जो जरूरी थी, मतलब तुम लोग भी जान लो, लीडरशिप 30 में मैं यही पढ़ाता हूँ सबको, सबसे पहला क्लास में यही होता है। पहला चीज है एवरीथिंग हैज अ करेक्ट टाइम, ठीक है, हर चीज का सही समय है। दूसरा चीज है कि यू हैव टू बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव होना ही, ऑप्टिमिज्म होना ही चाहिए। और तीसरा है एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, हाउ, राइट नेटवर्किंग। अगर आपके पास राइट नेटवर्क है, राइट डॉक्टर है, राइट कंसल्टेंट है, जो भी है ना, तो आपको कोई चीज की दिक्कत नहीं है। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एजुकेशन में अगर इस तरीके से क्रिएट किया जाए
then only I can think education can take social entrepreneurship to the heights. Otherwise, जो अभी का एजुकेशन सिस्टम मॉडल है वो काफी वेस्टर्न से, समझ ही रहो आप, ठीक है? Hmm. आओ, एक भीड़ है, उसमें दौड़ो और पैसे कमाओ, और पैसे कमाने में इट्स लाइक वो थॉट आ जाएगा टू मेक मनी, तो आपके पास पहला थॉट आया नहीं इम्पैक्ट का, पहला थॉट आपके माइंड में जनरेट किया एडुकेशन ने मेक मनी। अगर एडुकेशन जनरेट कर पाए फर्स्ट थॉट टू मेक इम्पैक्ट एंड देन मनी, इट विल क्रिएट चेंज। वे है एडुकेशन का, भी वे है, पहले बताना पड़ेगा कि इम्पैक्ट के लिए एडुकेशन है, मनी तो सेकेंडरी है, मनी आना ही आना है, ठीक है? अगर आपके पास ब्रेन है तो पैसा बनाना इज नॉट अ बिग डील, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। Anshika, you can take over. So, sir, as we have heard like 1,000 times, like innovation is very important. Innovation is very important for social entrepreneurship. So, sir, what do you think? What is the role of innovation in entrepreneurship, and is it really that important? इनोवेशन किसी भी चीज में इम्पोर्टेंट है, लाइफ का कोई भी आप कुछ भी काम कर रहे हो, इनोवेशन इनोवेटिव हो तभी योर ग्राफ विल मूव, अदरवाइज ग्राफ विल गो डाउन, दैट इज सिंपल। तो इनोवेशन हर फील्ड में चाहिए, विदाउट इनोवेशन कुछ हो नहीं सकता। अब इनोवेशन किस लेवल पे चाहिए, कैसे करना है, वो टोटली डिपेंड करता है कि आपने अपने गोल्स को, हाउ आर यू डिफाइनिंग योर गोल्स। इफ यू नो योर गोल्स तो ठीक है, फिर इनोवेशन आप उसमें लगाओ, चलेगा। तो विदाउट इनोवेशन नहीं हो सकता। अब फॉर एग्जांपल मैं तुमको कह दूं कि पहले हम लोग पढ़ते थे, ठीक है, ABCDEFGHIJKL हो गया, ठीक। अब उसके बाद A फॉर एप्पल आया ना, B फॉर बॉल आया, पढ़ाने का तरीका, इनोवेशन तो बचपन में ही है। तो विदाउट इनोवेशन कोई भी चीज कामयाब नहीं हो सकती, आपको इनोवेट करते रहना होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so sir, our next question is how important for you are partnership and collaboration in driving sustainability and social entrepreneurship? And sir, how do you engage government, business, and non-profit organizations in supporting sustainability, education, and awareness in your business model? I only engage with universities, वो भी top 50, and Okay. students. I don't engage with government until unless आगे जाके पता नहीं, अभी तक तो मैं engage नहीं करता। I have a self belief like if my students are studying from MIT, I can ask him to create a product and create change, whatever viable change वो कर सकता है करे। मैं गवर्नमेंट के साथ जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट देम, बट मेरे फिलॉसफी में इफ यू ब्रिंग अ स्टेक होल्डर, ओके, अ बिग स्टेक होल्डर लाइक गवर्नमेंट, बहुत कुछ चीज आप जो करना चाहोगे वो नहीं हो पाएगा उस तरीके से। व्हेन यूर आप जब जैसे जैसे एक्सपीरियंस व्हाइट हेयर्स आएंगे, आप समझ जाओगे कितना प्रॉब्लम होता है। गवर्नमेंट को रख लिया स्टेक होल्डर तो फिर वो चीज आपके कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। सेम लाइक जैसे आप स्टार्टअप स्टार्ट करते हो एंड यू स्टार्ट गेटिंग फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, यू लूज कंट्रोल। तो स्टेक होल्डर्स होने चाहिए। मेरे स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कोलंबिया का प्रोफेसर हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का प्रोफेसर हो गया, तो दीज आर लाइक माई स्टेक होल्डर्स। और मेरे स्टूडेंट्स भी एक काइंड ऑफ स्टेक होल्डर्स है। व्हाट आई डू, आई कनेक्ट देम। सो मेरा कोई नॉन प्रॉफिट, व्हेन आई स्टार्टेड तो यूनाइटेड नेशंस के साथ हमने नॉलेज पार्टनरशिप की, हमने रॉबिनहुड आर्मी के साथ किया, लीडर ऑफ लाइट के साथ किया, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ किया। एंड अगर मैं हर ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर से बात कर रहा हूँ तो आई ओनली अंडरस्टूड दैट गवर्नमेंट को स्टेक होल्डर बनाना इज अ बिग प्रॉब्लम। नॉन प्रॉफिट्स को बनाया जा सकता है, पर वो भी कोई आपको, आप सोच लोगे कि वो बहुत बड़ा चेंज ले आएगा, तो नहीं होगा, ठीक है? तो आपको स्टेक होल्डर्स, जैसे मेरे डोमेन में स्टेक होल्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के डोमेन में, कि मुझे टॉप नॉच एकेडमिया में कनेक्शंस चाहिए, जो कि है मेरे पास, और मेरे पास यूथ चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा है मेरे काम के लायक। तो यही मेरे स्टेक होल्डर्स है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। Great, sir. So just a fun question I would like to ask. If you were not a social entrepreneur, what would you be? सो अब इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। डू यू नो भगवत गीता? आप लोगों को भगवत गीता पता है? Anji sir. Yes. Yes, sir. अब मैंने 2 महीना पहले, आप लोग के लिए भी फन है ना, फन की तरह करना, मैंने TSA अमेरिका, थियोसॉफिकल सोसाइटी तो है अमेरिका की, जहाँ से कृष्ण मूर्ति को तुमको पता होगा, भगवान ही है वो भी एक तरीके से, वो भी तो ही केम फ्रॉम दैट थॉट प्रोसेस। और इस्कॉन है ना, तो मैंने लिंक्डइन पे TSA को और इस्कॉन को मार्क किया। एंड जैसे भगवत गीता को बोला जाता है माइथोलॉजी एंड और फलाना ढिकाना, तो आई गिव मैथमेटिकल प्रूफ्स, है ना। अब मैथमेटिक्स 2 + 2 = 4, तुम उसको मना नहीं कर सकते। तो उस पर पूरा थ्योरम है, पूरा मैथ्स है, वो भगवत गीता को डिफाइन कर देता है। तो आई कॉल्ड इट मैथमेटिकल भगवत गीता। और
उसका जो सीक्वेंस था वो पब्लिश हुआ था इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंटीजर सीक्वेंसेस में। थ्योरम तो मैंने किया और भगवत गीता पे लिखा, तो मुझे लगा इट्स लाइक डिवाइन, इसको पब्लिश क्या करना है, इसको खुले में डाल देते हैं लिंक्डइन में, जिसको पढ़ना है पढ़ ले। बट व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, जैसे आपने कहा कि आप सोशल एंटरप्रेन्योर नहीं होते तो क्या होते, सो आई हैव ड्यू टू गॉड ग्रेस मैं एक टाइम पे बहुत सारी चीजें मैनेज कर सकता हूँ। तो मैं मैथमेटिशियन, पहले मैं टीचर था, सो मैं जीमैट जीआरई सैट के लिए पढ़ा रहा था। जैम्बूरी एजुकेशन करके दिल्ली में काफी फेमस है, वो अब्रॉड एजुकेशन का नंबर 1 है, उसमें मैं 4 साल नंबर 1 टीचर रहा। तो सोशल एंटरप्रेन्योर, टीचर और बहुत कुछ, मैथमेटिशियन तो हुई। अभी आई वेंट टू कोलंबिया, तो वहां से गवर्नमेंट वाला भी ज्ञान है। मतलब एज अ सब्जेक्ट बोलोगे तो मैंने अपने ऊपर काफी इन्वेस्ट किया है टू डू लॉट ऑफ थिंग्स इन माय लाइफ, जिससे मैं अपने आप में काफी हैप्पी रह सकता हूँ। तो मैं सोशल एंटरप्रेन्योर तो हूँ, साथ में साथ एक मैं मानता हूँ कि मैं मैथमेटिशियन हूँ, भगवान जाने, लेकिन थोड़ा बहुत मैथ्स के इंडस्ट्री में तो कंट्रीब्यूट किया ही किया है। लेकिन मैंने कुछ ऐसा किया है जो कि अब एक गाना है, आई रोट अ सॉन्ग एंड नो वन शोड, है ना। सो बेसिकली आई रोट दिस और मैंने क्लियर कर दिया सबके सामने, भाई पढ़ लो जिसको पढ़ना है। पर वो चीज इस्कॉन और टीएसए कितना दिन में समझेगा, भारत सरकार को कब समझ में आएगा, बट आई मेड इट ओपन। तो अगर मेरे से अगर कोई फन क्वेश्चन करे कि ये वाला सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा आप क्या हो सकते थे, तो मैं हो सकता नहीं हूँ, आई एम देयर। ठीक है, इसमें कोई प्राउड बात नहीं है, मेरा इसमें कोई भी योग्यता नहीं है, बट इट्स डिवाइन ग्रेस, टोटली डिवाइन ग्रेस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। Actually, you can take over. Okay, sir, as you mentioned, you were a student of Mr. Anand Kumar. So, sir, just wanted to ask, what is the best piece of advice from him or anybody else that you have received and that has changed your life completely or has a significant impact in your life? ठीक है, तो मैंने किसी से समझा है, आई विल नॉट नेम इट, नाम लेना सही नहीं है, कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनीवन्स लाइफ, किसी के भी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। तो आई फर्स्ट वाज लाइक पीपल, है ना, पीपल आर इम्पोर्टेंट, बट एडवाइस वाज लाइक नो, यू आर इम्पोर्टेंट फर्स्ट। मतलब मेरे लिए जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल एडवाइस था कि सबसे पहले आई एम इम्पोर्टेंट टू माई सेल्फ एंड देन पीपल। मेरा थॉट था कि नहीं, रिवर्स इंजीनियरिंग है, पहले लोग होते हैं फिर आप होते हैं। सो ये थॉट से व्हेन आई अंडरस्टूड दैट नो, फर्स्ट I am important for myself. If I am taking care of myself in doing different things, making people happy, making myself happy at the same time, that's change. I can't be unhappy from inside and make people other happy. So I have to be myself. Being myself is like एक advice था। फिर so we come to, अच्छा आप लोग ये जानते हो कि नहीं, पूछ ही लेता हूँ मैं। So you know about Adi Shankaracharya, correct? Both of you know about Adi Shankaracharya? सुना है ना, आदि शंकराचार्य। यूथ को तो नहीं पता होगा, पर पूछ रहा हूँ, सुना है? ठीक। Sir, तो I've उसमें heard it. हाँ, तो ठीक है, वो भगवान ही है। तो एक परंपरा होती है, उसको कहते हैं अद्वैत गुरु शिष्य परंपरा। तो आई फ्रॉम बचपन से ही मेरे ऊपर आई, जैसे सेड डिवाइन ग्रेस है, डिवाइन ब्लेसिंग्स है। तो माय गुरु सेड दैट द एडवाइस जो मेरे लाइफ को चेंज करता है, द क्वेश्चन जो उन्होंने चाइल्डहुड में मेरे लिए प्लेस किया था, हु यू आर, हु आर यू, हु यू आर, वो आंसर को आई वाज ट्राइंग टू गेट इट आउट एंड ऑब्वियसली आ जाता है आपके पास एक समय के बाद, अगर आप उस पर मेहनत करोगे। तो ये 2 एडवाइसेस हैं जो मेरे लाइफ में काफी हेल्प करते हैं मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अपने आप को खुश रखूं, और दूसरा है कि एट द सेम टाइम आई नीड टू अंडरस्टैंड हु एम आई। वो कौन सा फेमस कोट है ना, इट्स नॉट हु आई एम अंडरनीथ बट व्हाट आई डू दैट डिफाइंस मी, है ना। तो वही चीज है, वही एडवाइस आया था, समझ लो, पूरा निष्कर्ष यही है। आगे सवाल पूछो। So, what are some of the biggest opportunities right now in the coming time in India that you see in the field of social entrepreneurship, especially the areas where maybe the aspiring leaders in social entrepreneurship can tap in the coming years in India? इंडिया में हर एक फील्ड में अपॉर्चुनिटी है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को। मेरे हिसाब से आप लोग खुद देखना कि in 3 years, as I say, we will be the number 1 in the world. कोई बीट नहीं कर सकता। वो समझ में आता है क्योंकि मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ता हूँ, किताबें भी बहुत पढ़ रखी है। तो किसी भी फील्ड में अपॉर्चुनिटी है। आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आओगे तो मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि क्या एनर्जी को सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से क्रिएट किया सकता है, सस्टेनेबल एनर्जी। अगर उसमें एक वाइबल प्रोडक्ट हो और उससे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट किया जाए, तो इफ यू हैव लाइट यू कैन स्टडी,
If you have fuel, you can cook. So एनर्जी को सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, एंड आई थिंक इंडिया में वो अपॉर्चुनिटी अभी ओपन होगा, और you will see lot of people who will try in and out. Obviously few will make names and few will go inside, लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, थी, इंडिया में रहेगी, बिकॉज प्रॉब्लम्स इंडिया में सबसे ज्यादा है, तो सॉल्यूशन मेकर भी चाहिए. लेकिन एज आई सेड कि मेरे हिसाब से what I'm looking for is like someone should come down and do social entrepreneurship while connecting the इकोनॉमी में जो डिसएडवांटेज पीपल हैं उनको कैसे आप एनर्जी में एक प्रोडक्ट बना के आप मैनेज कर सकते हो, स्टेक होल्डर्स क्रिएट करके कर सकते हो, वो गेम चेंजर होगा, वो $1 बिलियन इजिली बना सकते हैं, वेरी इजी. बिकॉज लोकल पीपल को अगर आप बोलो कि एनर्जी प्लांट बनाना है और उसके बाद यू स्टार्ट क्रिएटिंग स्टेक होल्डर्स बना लिए कि कहाँ कहाँ जाएगा, तो एक आप जब गांव को एडुकेट कर दोगे, उसको एनर्जी दे दोगे, उसको मनी दे दोगे, तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट्स फ्रॉम विलेजेस, नॉट फ्रॉम सिटीज. विलेज चेंज करने लगेगा, सिटी तो यार ऐसे भी चेंज होता है, फिर यू विल सी कि अपॉर्चुनिटीज हर जगह बूम करने लगेंगी. तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है. हाँ, किसके लिए है? जो कि ऑब्वियसली पहले लाइफ थोड़ा विजुअलाइज कर चुका है, 3-4 साल कंपनी में किसी कंपनी में काम कर लिया, या फॉर एग्जांपल कहीं कुछ उसके पास एक वर्क एक्सपीरियंस है 4-5 साल का, टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स, उसके लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है. फ्रेशर्स के लिए अगर मेरे से पूछोगे तो जैसे अब ये काफी थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएस में बूम करते हैं ना, तो यहाँ पे जब थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल के बन जाएंगे तो यू विल सी एक बहुत अच्छी सैलरी और बहुत अच्छा लाइफस्टाइल, मतलब सुबह 10 बजे गए और 5 बजे घर आ गए. तो ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से इट्स पॉसिबल है ना, अपॉर्चुनिटीज के टर्म्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, sir. So our next question is, where do you see yourself in next 10 years? नेक्स्ट 10 years तो मैं तो कल का नहीं बता सकता, बट ये सब जो क्वेश्चन बने मेरे हिसाब से काफी फालतू क्वेश्चन हैं. वेयर डू आई सी माई सेल्फ इन 10 years. बट अगर थ्योरी है, लॉजिक तो नहीं है इसमें, बट थ्योरी है एज मैथ्स, तो मैं पार्लियामेंट में बैठा हूँ कहीं पे, दैट इज व्हाट आई विजन टू बी. उसी हिसाब से प्लानिंग की जाती है. तो मे बी इन पार्लियामेंट एज अ लीडर क्रिएटिंग मोर चेंज. इलेक्शंस जीतूंगा तो शायद पहुंच जाऊंगा, लेट्स सी. बट मेरा विजन तो यही है कि उस पोजीशन पे पहुंचो जहां पे यू कैन ड्राइव फुल चेंज, पूरा एजुकेशन सिस्टम डिजाइन कर सको. ये जो आईएएस ऑफिसर्स हैं जो कि यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं 2-3 साल, कुछ रट के कुक कर लेते हैं, मेरे मार्क करना उन वर्ड्स को, उससे चेंजेस नहीं आ सकता. वहीं से फ्लॉ है प्रॉब्लम में, क्योंकि आपने किताब पढ़ ली, आपको लगा कि आपके पास एक स्किल आ गया, आप जाके चेंज कर दोगे, आपने बहुत बड़ा एग्जाम निकाल लिया है. बहुत बड़ा एग्जाम निकालने से लोगों से कैसे कनेक्ट करना है उसका कोई रिलेशन ही नहीं है. ये है एजुकेशन सिस्टम का सबसे पहला फेलियर. दूसरा फेलियर है, जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, इंडियन टीचिंग सर्विसेज नहीं है. ठीक है, जिस दिन इंडियन टीचिंग सर्विसेज आ जाते, मैं बताना चाह रहा हूँ, इस थॉट को समझना, तभी मैं 10 साल आगे देख पाऊंगा कि इंडियन टीचिंग सर्विसेज होते अभी, तो मैं आपको एग्जैक्ट बता सकता कि 10 साल के बाद मेरा क्या हो सकता है. पर वो सिस्टम है ही नहीं. तो मैं अगर पहुंच जाऊं पार्लियामेंट में तो किसी भी लो लेवल पे पहुंचूं, व्हाटएवर गॉड ग्रेस, कहां तक पहुंचूंगा लेट्स सी. बट अगर पहुंच जाऊं देन आई सी दैट आफ्टर 10 years कुछ बड़ा चेंज कर सकते हैं. तो वही विजन कि ग्रो करना है लाइफ में, जहां और एज मैन लुक्स फॉरवर्ड, ग्रो. सो 10 years में जितना भी ग्रो कर सकते हैं वो करेंगे. बट गोल्स मेरे कोई ऐसे सेट नहीं होते कि मैं 5 साल के बाद ये करना चाहता हूँ. मेरा एकदम बिल्कुल सिंपल सा गोल होता है कि मैंने जो पहले 10 साल पहले जो सोचा था, क्या व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ बेस्ट, बहुत अच्छा कर रहा हूँ. मैं प्रेजेंट में रहता हूँ बहुत ज्यादा, आगे क्या होगा पीछे क्या होगा उससे कोई मतलब, कल क्या करना है ठीक है बस इतना करना. वो धीरे धीरे जॉट डाउन करेगा. कनेक्शंस बहुत है, नेटवर्क बहुत ज्यादा है, हाई लेवल नेटवर्किंग है, और ये सब भगवत गीता और ये सब जो लिखा है वो चल गया तो मैं क्या पता नेक्स्ट इलेक्शन में खड़ा हो जाऊँ, नो वन नोस. सो वो प्लानिंग हमेशा बैक एंड पे है कि कल क्या करना है. 10 साल का तो मुश्किल है, बट एज आपने क्वेश्चन पूछा तो मैंने आंसर दे दिया कि हाँ आप तो विराट कोहली बन जाएंगे. जस्ट फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, चलो पूछो नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is basically revolves around the initiatives that you've taken during your time as working as a social entrepreneur. So while planning those initiatives, how do you measure or decide how much scalable or impactful or adaptable it will be to different communities or regions? देखो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में एज आई सेड
मैं एक दो ट्राइबल विलेजेस में पूरा इम्पैक्ट कर चुका था। कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, फूड, एजुकेशन, हेल्थ, एवरीथिंग, सब चीज एक ही गांव में सब अवेलेबल है। पर उस विलेज पे आपको रेगुलर टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। रेगुलर टाइम देने का मतलब क्या होता है कि मैंने कहीं पे इम्पैक्ट कर दिया है ना, 5 साल उसको एक अच्छा ग्रोथ पे ले गए, लेकिन अगर मैंने 5 साल के बाद उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो फॉल डाउन करेगा ही करेगा। दैट इज हाउ थिंग्स वर्क। तो चेंज तभी आ सकता था, माई माइंड सेट वॉज लाइक कि मैं एज अ टीचर हूँ, मेरे पास बहुत नेटवर्क है बच्चों का जो कि बहुत हाई लेवल ऑफ कॉलेजेस से पढ़े हैं, अच्छे अच्छे कंपनीज में टॉप जगह पढ़े हुए हैं। अगर इफ आई हैव कनेक्शन विद देम और अच्छा कनेक्शन है, देन दे विल आल्सो कम इनटू द सेम पिक्चर एंड विल स्टार्ट डूइंग समथिंग एट देयर ओन लेवल, और दैट विल बी एक्स इज इक्वल टू वाई। तो वो चेंज हो पाएगा। यू अंडरस्टूड द आंसर? Yes. Yes, sir. Anshika, you can go and ask the last question. Okay, sir. So this is our last question. So, sir, please give a piece of advice for our young entrepreneurs who want to make a difference through sustainability and social entrepreneurship. बी योरसेल्फ। तो मुझे जो एडवाइस मिला मैं वही दूंगा, ठीक है। आप जो करते हो उससे आप डिफाइन हो गए, आप अंदर ब्रेन में क्या सोच रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रैक्टिकलिटी में सोचो, अपने आप को ड्राइव जो भी अंदर से आता है, डू इट। एवरी वन, सब कोई यूनिक है, कोई ना ऊपर है ना कोई नीचे है, सब बराबर है। ये थॉट आना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी भगवान हो गए, वो भी मेरे ही बराबर है, और कोई गरीब आदमी भी मेरे ही बराबर है। वो थॉट अगर यूथ में आ जाए, इक्वालिटी, अगर वो एक सेंस बन जाए, सब इक्वल है, और मेरे से जो इम्पैक्ट हो सकता है, जो किसी से भी वो इम्पैक्ट हो सकता है सोसाइटी में, जैसे मोदी जी इज डूइंग इम्पैक्ट एट हिज ओन लेवल, एक गरीब आदमी भी इम्पैक्ट कर सकता है अगर आप उसको सक्षम बनाओगे। दैट इज सक्षम भारत, है ना। तो यूथ के लिए एक एडवाइस है कि आप सबसे पहले अपने आप को समझो कि आप क्या करना चाहते हो, और दूसरा चीज है आप आउटसाइड द सर्कल जो देखते हो वहां पे इक्वालिटी देखो। कभी किसी को ये मत सोचो कि वो किस एजुकेशन लेवल से आया, या फिर उसके पास कितना पैसे का बैकअप है, या फिर वो किसी भी तरीके से आप उसको बैलेंस वे में देखो कि सब बराबर है। अगर आपके पास ये थॉट आ गया सब बराबर है, तो अब आप तो जो बनना चाहोगे वो बन जाओगे, वेरी सिंपल है। लेकिन एथिकल वैल्यूज में बहुत जरूरी है कि आपको ट्रीट करना पड़ेगा इक्वलिटी, इक्वल। कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कोई बिलियनियर हो गया तो हो गया अपने लिए, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, वो अपने लिए बिलियनियर है, वो दूसरों के लिए बिलियनियर नहीं है। पहली बात, सिंपल सा रीजनिंग है। तो हमारा सोसाइटी बहुत उस तरीके से हो गया है कि किसी ने $1 बिलियन की कंपनी बना दी, ठीक है, अब कैसे भी बनाई हो, ठीक है, लफड़ा किया हो, इन्वेस्टमेंट ले आए हो, तुरंत बन गए बिलियनियर। दूसरा जो स्टूडेंट होता है वो यही सोचता है कि मुझे बिलियनियर बनना है। क्यों बनना है? बिलियनियर क्यों बनना है, या मिलेनियर क्यों बनना है, या फिर प्रधानमंत्री क्यों बनना है, वॉट एवर, उसका रीजनिंग आपको एट अ यंग एज में पता हो जाएगा, तो आप जो भी बनना चाहते हो, वॉट एवर यू विल बिकम, वेरी सिंपल रीजन, बन जाओगे। तो यही है मेरा एडवाइस, और कुछ नहीं है। मैं खुद एडवाइस मांगता हूँ एडवाइस देना तो मेरी योग्यता नहीं है, पर यही मेरा एडवाइस है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही एडवाइस देता हूँ कि लाइफ में जैसे ओशो यूज्ड टू से दैट राम कृष्ण बनने की कोशिश मत कर, ठीक है, क्योंकि वो अपने युग में राम कृष्ण थे। आप बस एक इंसान, एक बेस्ट ह्यूमन बन जाओ, फिर भगवान तो आपके अंदर ही, एंड यू विल ग्रो, ठीक है। Yes, so thank you so much, sir, for taking the time to join us for the interview. Your insights were truly inspiring, and I believe that the audience who's watching this also learns not everything, but 50% of what you were sharing with us, so that the world can also become a better place. It was a pleasure to learn from your journey, and we're grateful for your valuable contribution. Perfect. और आप दोनों को भी कभी कोई हेल्प चाहिए, या फिर आप किसी दोस्त को हेल्प चाहिए, किसी को भी अगर मेरे लायक कोई भी काम होगा, तो आई हैव डन इट, आई विल डू इट। दैट्स माय वर्क फॉर द पीपल, फॉर द यूथ। वही मेरा थॉट प्रोसेस रहा है। तो आप लोग को भी अगर कुछ कभी कोई भी तरीके का प्रॉब्लम है और आपको लगे नहीं सॉल्व हो रहा है आपके लेवल पे, सेवक हाजिर है, आप लोग बिल्कुल बोलिए और मैं करूंगा। जो भी ये देख भी रहा है, मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर तुमको लग रहा है तुमसे नहीं हो पा रहा, तो बहुत सारे लोग हैं जो तुमको मदद कर सकते हैं, और तुम वहां से निकल के बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो रीच आउट करो लोगों को, ये भी बहुत बड़ा एडवाइस है। लोग रीच आउट नहीं करते, इसको रीच आउट करते हैं जो कि फर्जी होता है, ठीक है। बहुत जरूरी है एक फर्जी और एक सही में डिफरेंशिएट करना। अगर वो आपको पता चल गया तो इट्स लाइक अभी तो एसआरसीसी पहुंच ही गए हो। मैं तो आप लोग दोनों के लिए बोलूंगा कि अगर आप लोग ये सब ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो, यूथ में आप लोग अभी कितनी एज होगी, बहुत यंग हो, और इस टाइम पे अगर ये सब कर रहे हो, तो मेरे लिए तो यार सैल्यूट है, वेरी गुड, बहुत अच्छा करो अगर इतना यंग एज में आप दोनों को ये चीज आ गई। और मैं बताऊंगा ये सब चीजें कब फायदा करती हैं, जब आप थर्ड ईयर में
अपने एजुकेशन के लिए अगर हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हो, जैसे हार्वर्ड कैनेडी स्कूल कोई जाना चाहता है, या कोलंबिया कोई स्कूल जाता है, या स्टैनफोर्ड कहीं जाना चाहता है, तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बाहर की दुनिया जो होती है, जो बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, वो आप जैसे लोगों को ढूंढ रहा है, ना कि वैसे लोग जो सिर्फ काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। उनको चाहिए एक परफेक्ट व्यू। और आपके इस इनिशिएटिव को बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही काम करते रहो। बात विचार करने से ज्यादा है। जैसे हम लोग पॉडकास्ट पे आते हैं, हजारों पॉडकास्ट होता है इंडिया में, मैं भी बहुत जगह भाषण वाषण देता हूँ, क्या मैं समझूं इम्पैक्ट हो पा रहा है? 1% शायद हो पा रहा होगा। लेकिन वो चीज को अगर पॉडकास्ट बना लिया, आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, 4-5 सोशल एंटरप्रेन्योर लो, एक स्मॉल जगह पकड़ो, वहां पे इम्पैक्ट करो, और फिर देखो कि आपको भी फिर बड़ा मजा आएगा। ठीक है, बिकॉज बोलने में जो मजा आता है उससे ज्यादा करने में आता है। ठीक है, टू डू देन यू विल, आपको बोलने में कोई पॉइंट ही नहीं है ना, आपने कर दिया। सो पॉडकास्ट इज अ वे टू कम्युनिकेट पीपल दैट कि हाँ ऐसा होना चाहिए, करके कौन दिखा रहा है, दैट्स द वे टू डू इट। सो आगे का इनिशिएटिव जो भी होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन से, एसआरसीसी पहले से भी करता है, आपके सीनियर्स मेरे से कनेक्शंस में बहुत पहले से, मेरे स्टूडेंट्स वहां से पास आउट हो चुके हैं बहुत सारे। बट एक प्रॉब्लम है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, है ना, आईआईटी हो चाहे आईएम हो चाहे कोई भी कॉलेज हो, बात बहुत करते हैं यार हम लोग। सही में मैं भी बहुत बात करता हूँ यार, ऐसे हो जाना चाहिए, चेंज हो जाएगा। नहीं, हर एक इंसान को कुछ स्टेप लेना होगा। आपका भी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ एक चेंज लाओ, कुछ कुछ भी चेंज ला सकते हो, स्मॉल चेंज। 5 बच्चे है ना, 5 बच्चे, ठीक है, क्लास 11 से पकड़ो और 12th में उनका लाइफ बना दो। 11 12th में कुछ भी करा दो। जैसे तुम खुद पहुंच गए ना एसआरसीसी, उसको भी किसी एक कॉलेज पहुंचा दो, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगी, और फिर तुमको समझ में आएगा कि इम्पैक्ट अब स्टार्ट हो गया। तो इम्पैक्ट पहले आया लाइफ में, मनी हैज टू कम। लेकिन अगर मनी आया पहले लाइफ में, तो मनी, मेरे से लिख के रख लो, मनी विल गो अवे। इट हैज टू गो, चाहे तुमसे 10 साल बाद जाए, 20 साल बाद जाए, वो चला जाएगा और जाएगा तो वापस नहीं आएगा। बट इम्पैक्ट पहले गया, ऐसा तो मनी इट विल कम। वही चीज है। ठीक है, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगे बढ़िए। ठीक है, Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. It was really nice talking to you and interacting with you.